Shweta, Yes, sir. audible properly? Anyone having any doubt, any confusion, any point that we discussed till now? Take 1 minute to know in case of any doubt. Okay, so now let me share my screen. Is this visible? Just wait. No. Okay, just wait. Now it's visible. Yes, sir. So we were discussing example 2, the last class. So what is example 2? This one is example 2, and always use the backwards algorithm, and this is the start to. In this we have three process: P0, P1, P2, and allocation matrix and maximum matrix here. So we have to three units of type 1, X, 3 units of type 4, type Y, and 3 units of type Z are available. ये हमारे पास available matrix कितना है? The system is currently in Z state, so OS assume that or it is given that the system is same. Now after this allocation means not को जो चाहिए था उसको इतना मिला और कुछ नहीं मिला हो. Even also need something to also, but at this present scenario the system is safe. So in this state, suppose a new request is request 1, which is done by P0, and request is based by P1. So determine whether the request 1 or request 2 can be permitted or not. ये भी बताना है कि request 1 permit हो सकती है, नहीं हो सकती है, request 2 permit हो सकती है नहीं. इसके लिए so first of all, as per the question given, we have available equal to what? 3 into is given here. 3 units of type X, 2 units of type Y, and 2 units of type Z. 3 to 2. Need is equal to max minus allocation. So max is given. So max allocation and max, these two matrices are given. It is what? Max minus allocation. So 8 minus 0, 3 minus 8 minus 0, 8, 4 minus 0, 4. मैंने कल बताया था आपके साथ. So look at Sir. by subtracting. हाँ yes. Sir, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है. कहाँ से? सर बैकग्राउंड से आपके. ओके. अभी भी आ रही है श्वेता? सर हल्की हल्की आ रही है अभी भी. श्वेता. अब श्वेता आ रही है? अभी क्लियर है? Yes. Okay. So this is the need matrix. तो हमने पता need कैसे निकाला है? Need max minus allocation. So you can subtract allocation matrix from the max matrix with respect to every resource X, Y, and Z. Okay? Clear? Need matrix clear? कैसे मैंने कंप्यूट किया है? Yes, sir. बताया बेटा? Yes, sir. Next point. Yes, sir. Now we'll check whether request one can be accepted or not. तो नीड क्या है रिक्वेस्ट 1 की? देखिए यहाँ पर 0, 0, 2 है ना. 0 units of X, 0 units of Y, and 2 units of Z. So 0, 0, 2. So 0, 0, 2
available is equal to Z22 is given. So clearly with this instance available, the requirement of request 1 it means P naught can be satisfied. इसको क्या चाहिए, 2 यूनिट ऑफ Z का चाहिए होगा, 2 यूनिट अवेलेबल है, आगे चीजें चाहिए ही नहीं. क्लियर? यस, Yes, sir. अवेलेबल. तो एट द फर्स्ट ये हमको लग रहा है कि क्या कि इसको मिल जाना चाहिए, तो हमने इसको दे दिया. तो बैंकर्स एल्गोरिथम अज्यूम दैट रिक्वेस्ट 1 इज एंटरटेन्ड, देन इट मॉडिफाइड डेटा स्ट्रक्चर. तो जो नीड मैट्रिक्स है वो चेंज हो जाएगा और जो अवेलेबल है वो भी चेंज होगा और एलोकेशन भी चेंज हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा देखते हैं. तो एलोकेशन में पहले क्या था, यहाँ पर 1 था, तो कितना हो जाएगा 1 + 2 3. ठीक, जेड को कितना चाहिए था, 2 चाहिए था, 2 - 2 0. ठीक, क्लियर? ये था आपके पास, दिखाई ये था ना 1 था एलोकेशन, 1 + 2 दैट इज 3 एंड 2 इज नीडेड फॉर टाइप जेड. तो ठीक है, नीड इसको 842 की है, याद रखिएगा. नीड कितनी है, नीड है 842 की, बट रिक्वेस्ट पी नॉट ने क्या कहा है, पी नॉट ने कहा कि वी Sir, एट दिस. हाँ यस, बताएं. एट दिस टाइम वी नीड दिस, उसको चाहिए 842, बट उसने कितनी डिमांड किया है 002 का. ठीक है. हाँ श्वेता बताइए, कुछ कह रहे थे आप. sir, नहीं sir, कुछ नहीं. तो अब अभी इसने क्या किया, 002 का है, नाउ वी हैव अवेलेबल कितना है 322. तो नाउ दिस रिक्वेस्ट कैन बी इजीली इंटरटेन. ठीक है, जब ये इंटरटेन कर लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, इट मींस टी नॉट के पास 1 + 2 आ जाएगा यहाँ, और नीड में से क्या होगा 2 - 2 0 3. करेक्ट? क्लियर है ये बेटे? तो आफ्टर assuming that the request 1 is accepted or entertained, it can be entertained. So as per the algorithm, it modifies its data structure. तो allocation 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा. ये मैंने यहाँ किया. ठीक है, जो बोल्ड है पी नॉट रो के अंदर जो बोल्ड है वो मॉडिफाइड है 3 and 6. क्लियर? एनीवन हैविंग एनी डाउट? बताए बेटे, किसी कोई डाउट है अभी? आगे चले हम. एनीवन हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? यस. एनीवन? बेटे गेस कर लो, कुछ तो बताओ, या क्लियर है, आगे चलूं मैं? हाँ यस. सर इसमें जो ये एलोकेशन दी होगी, पहले तो सर क्या कहते हैं कि ये एलोकेशन और मैक्स को माइनस करके नीड निकाल लेंगे. देन सर जो रिक्वेस्ट दी हो तो उसमें ये एलोकेशन में ऐड कर देंगे जो भी हमें चाहिए होगा, और नीड से माइनस कर देंगे. जैसे अगर से आपको मान लेते हैं कॉमन सेंस की यूज कीजिए, जैसे मान लीजिए आपको 10,000 रुपए चाहिए था, आपने 3,000 रुपए की रिक्वेस्ट की, तो नीड यस कितना सर. आपका है 10,000, तो मैक्सिमम कितना आपका 10,000 चाहिए, यस सर. और आपके पास पहले से 3,000 आपके पास पहले से पड़ा हुआ है, तो नीड कितनी है आपकी 7,000. नाउ सपोज इफ यू नीड 2,000 मोर, आपको 2,000 कहीं से और मिल गया, क्या हो जाएगा 3 + 2, यहाँ क्या हो जाएगा? क्लियर? यस सर. ये यस सर. तो होगा ना, और क्या मैक्सिमम तो नीड आपको ये तो इतनी रहेगी, तो आपको चाहिए इतना, इतने में से कितना आपको माइनस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है, उससे कितना होगा. तो एलोकेशन आपको जब आपको नई रिक्वेस्ट मिल जाएगी, नया लोन मिलेगा, तो आपको जो एलोकेट था उसमें चीजें आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगी, और जहां से जिसके अकाउंट जो नीड थी उसमें से माइनस हो जाएगी. ठीक है, वही चीज यहाँ हुआ है. ओके सर. क्लियर? जी सर, क्लियर है. तो आप पूछ सकते हैं, कोई करने की बात नहीं है, फिर से मैं रिपीट कर दूंगा. नहीं सर, अब समझ में आ गया.
तो नाउ अवेलेबल लिखा है, हमने यहाँ पे क्या, नाउ इट इज सेफ स्टेट, तो रिक्वेस्ट वन कैन बी परमिटेड अदरवाइज नॉट। तो हम चेक करेंगे कि सेफ है कि नहीं सेफ, यहाँ लिखा हुआ है। तो दिस वन मिस्टेक सेफ और नॉट, आफ्टर परमिटिंग दिस रिक्वेस्ट, तो अवेलेबल क्या हो जाएगा, 322 माइनस 002 कितना हो गया, 320, है ना। ये तो अवेलेबल हुआ हमारे पास। पहले क्या था, इनिशियली वी हैव 322, now we have 320 because 2 unit of z resource is allocated to p naught. Clear है? Now with this available resource we can check whether all the process in a system can be executed or not. तो अगर से एग्जीक्यूट हो जाएगी तो सेफ है, अगर सेफ नहीं है तो स्टेप वन क्या करेंगे, सेफ्टी एल्गोरिथम में क्या है, स्टेप वन विद द इंस्टेंसेस अवेलेबल currently only the requirement of process P1 can be satisfied. अब देख लेते हैं, तो P1 की रिक्वायरमेंट कितनी है हमारे पास, 320, तो मैंने लिखते हैं वो है 3 ये हमारे पास अवेलेबल है। नाउ P1, तो P1 के पास कितनी रिक्वायरमेंट बताइए, देखिए अभी अभी हम क्या, हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, P0 840 है, ये सैटिस्फाई हो सकती है इससे, बताइए। नो सर। नो। P2 हो सकती है, यस, P2 कैन बी satisfied or not, बताइए। यस बेटे, हाँ है ना, P2 को satisfy कर सकते हैं। अमित, अमित जायसवाल, क्या होगा, P2 रिक्वेस्ट कैन बी satisfied or not with this available resource, हो सकता है, नुकसान नो सर, हो सर सकता नहीं है। हो सकता है। नहीं हो सकता ना, ये साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, 1 यू कैन यूज, 2 यू कैन, बट यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ कितना 0 है, कैसे आप दे पाओगे, यस दे नहीं पाओगे, इट्स नॉट पॉसिबल, तो इट कैन बी सेटिस्फाइड। ओके, तो क्या हो सकता है, सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है हमारे पास, कौन सा, सर P1 P1। तो with यस this, सर, after entertaining P0 we have available, ये अवेलेबल है हमारे पास, now this available we can only satisfy P1। तो देखते क्या होगा हमारे पास, जब P1 करेगा satisfy, तो P1 मान लीजिए, P1 को हमने दे दिया क्या, 320, तो 3 रिसोर्स हमने यहाँ दे दिया P1 को, तो क्या हो जाएगा, ये एलोकेशन कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0, है ना, यही तो होगा, क्यों बेटे, यही है। यस नाउ आफ्टर फिनिशिंग इट्स एग्जीक्यूशन, इवन क्या करेगा, अपना रिसोर्स क्या करेगा, रिलीज कर देगा, करेगा ना, तो क्या है रिसोर्स, इसमें एलोकेशन कितना था, 320 का था, और यहाँ पे 320 पहले अवेलेबल है, कितना जाएगा, एलोकेशन प्लस अवेलेबल कितना हो जाएगा, 320 प्लस 320 कितना हुआ, 640 बताइए, 640, ये तो हुआ। 640 तो नाउ आफ्टर P1 फिनिश इट्स एग्जीक्यूशन, अवेलेबल कितना हो गया, 4640, जितना इसके पास एलोकेटेड था उसने इसको क्या किया, रिलीज कर दिया, 320 लेकर यहाँ, नाउ 640 से बताइए, अब हम किसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये हो सकता है, सही, पॉसिबल टू सेटिस्फाई रिक्वेस्ट P0। नाउ our state has been changed, now we have available 640, अभी हम P0 को सेटिस्फाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बताइए। नो सर अभी भी नहीं कर सकते। अभी नहीं। नहीं कर सकते, बिकॉज वी नीड 8, इसको कर सकते हैं, नो सर P2 भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, सिस्टम हमारा डेडलॉक स्टेट में आएगा कि नहीं आ गया भाई, नीदर P0 इज रनिंग नॉट P2 इज रनिंग, कोई इशू हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि जो रिसोर्स अवेलेबल है उसको क्या हुआ है, हम P0 कर सकते हैं ना, P2 को कर सकते हैं, नहीं, तो क्या हो गया, सिस्टम हमारा अनसेफ स्टेट में हो गया, है नहीं, P1 के पैसा वापस करने के बाद भी
हम P0 P2 को अवेलेबल मतलब रिसोर्स एलोकेट नहीं करते। नाउ सिस्टम विल डेटा P0 कैन नॉट बी इंटरटेन। ओके, जो हमने डिसीजन लिया था ना ऊपर कि P0 कैन बी इंटरटेन, because of this reason P0 cannot be entertained, because if I accept the request done by P0, so the system will enter in deadlock। तो यहाँ पे क्या आपको लगा कि at the present scenario आपको लगा कि ये तो अवेलेबल था तो दे देते हैं, पर देने के बाद क्या होगा, सिचुएशन हमारी बहुत ही बेकार होगी। ठीक है, अगर हम इसको एक्चुअल में दे देंगे क्या हो जाएगा, सिस्टम हमारा डेडलॉक स्टेट में हो जाएगा। है नहीं, दिख रहा है आपको ये? यस Yes, sir. देख रहा हूँ। बताए बेटे। यस, तो ये हमारा एग्जांपल था आपको समझाने का। नाउ नेक्स्ट अब क्या रिक्वेस्ट 1 तो ये हो नहीं पाएगी। रिक्वेस्ट 1 हमारी जो थी, रिक्वेस्ट 1 क्या थी हमारी, P0 रिक्वेस्ट 002, ये नहीं हो पाएगा। दिस इज नॉट सकता, पहले इसको हम देंगे ही नहीं। अगर इसको हमने दे दिया पहले तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, डेटा। नाउ रिक्वेस्ट 2 पे आते हैं। रिक्वेस्ट 2 पे आते हैं तो रिक्वेस्ट 2 की क्या डिमांड है, 2 0 0, ये तो है। तो जब रिक्वेस्ट 1 सेटिस्फाइड नहीं हुई तो हम कहाँ चले गए, बैक ट्रैक करके कहाँ पे आ गए, जो पहली स्टेट थी वहां पे आ गए। कहाँ पे अवेलेबल कितना हमारे पास है, 2 2, ये तो अवेलेबल है हमारे पास अभी, क्यों बताइए बेटे। यस सर। ये तो अवेलेबल है ना, कॉज सिस्टम रिक्वेस्ट 1 इज नॉट एंटरटेन्ड, सो सिस्टम विल बैक ट्रैक टू द प्रीवियस स्टेट, जो इसकी सेफ स्टेट थी। ये सेफ स्टेट थी कि इतना अवेलेबल था, और अब रिक्वेस्ट 2 गया तो रिक्वेस्ट 2 कैन बी एक्सेप्टेड और नॉट, बताइए, हो सकता है एक्सेप्ट। यस सर। तो इसका मतलब P1 की रो चेंज हो जाएगी, P1 का जो एलोकेशन है वो चेंज होगा, और P1 का जो नीड है वो चेंज हो जाएगी। तो P1 की एलोकेशन में क्या हो जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा, और नीड में क्या हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा। चेक करते हैं क्या हो जाएगा। सेम प्रोसेस लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट 1 कैन नॉट बी, जैसा मैंने कहा वही जो मैंने बताया समझ लिख दिया। तो रिक्वेस्ट 1 कैन नॉट बी परमिटेड, लास्ट लाइन चेक की, क्लियर है। जो मैंने आपको समझाया था अभी वही चीज यहाँ लिख दिया। नाउ रिक्वेस्ट 2 पे आते हैं। तो नीड ऑफ P1 200 अवेलेबल G22, तो क्लियरली रिक्वेस्ट 2 कैन बी सेटिस्फाइड। बैंकर सर्विस अज्यूम दैट, अभी इसने एक्चुअल नहीं किया, अज्यूम किया है। आफ्टर Yes, अज्यूमिंग sir. इट देन मॉडिफाइड इस डेटा स्ट्रक्चर। P1 कितना हो जाएगा, 2 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये 5 हो गया, और यहाँ से 2 माइनस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, पहले पहले 3 रहा होगा, यहाँ 3 + 2 5 हो गया होगा, यहाँ पे क्या हो 3 रहा होगा तो 3 - 2 1 होगा। क्लियर, चेक कर लीजिएगा P1। अब देखिए अब क्या होगा, तो कितना हो गया अवेलेबल हमारे पास, अवेलेबल कितना हो जाएगा अगर इसको लेंगे हम, तो 3 1 2 ये तो अवेलेबल होगा। आफ्टर इंटरटेनिंग दिस रिक्वेस्ट, ये अवेलेबल कितना हो गया, 1 2 2। ठीक है, यस सर। क्लियर। अब यहाँ से देखिए 1 2 2 से सो P1 P2 सेटिस्फाई होगा। limit of process P1 can satisfy, तो process P1 is allocated to 1 2 2, तो कितना हो जाएगा 1 2 2 अवेलेबल है, प्लस 5 2 0 क्या इसके पास allocated है ना, 1 2 2 ये दिख गया, 1 2 2 अवेलेबल है। तो अब हम चाहे तो इसको भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं, दोनों को कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। यस सर। यस सर। यस, तो हमने पहले P1 को चूज किया, तो P1 ने 1 0 0 इसको दे दिया, तो 1 इसको दिया होगा, तो क्या P1 ने कंप्लीट किया, तो P1 के पास कितना 5 2 0 एलोकेटेड है। अब 1 2 2 पहले से अवेलेबल है, तो क्या हो जाएगा 1 2 2 प्लस 5 2 0 कितना हो जाएगा 642। फोर। नाउ आफ्टर दिस अवेलेबल रिसोर्स सर 642। किसे कर सकता है 6 4
642, यस करेक्ट, थैंक यू। नाउ अब इसके बाद क्या था, P1 तो फिनिश हो गया, नाउ P2 एंड P0, तो इसमें P2 को P0 को कर सकते हैं, बताइए। नो सर। With this available resource we can, no, because P0 required 8 and we have only 6, नहीं कर सकते। P1 को कर सकते हैं, P2 को कर सकते हैं, यस सर। मान लो P2 को दे दिया हमने, P2 ने इसको ले लिया, तो P2 को कितना, आफ्टर फिनिशिंग जॉब P2 क्या करेगा, 2 1 1 क्या करेगा, रिलीज कर देगा, ये तो करेगा, तो कितना हो जाएगा अवेलेबल, 213 415 853। 628 853, करेक्ट। So P2 is finished, P1 is finished, now P0 can be satisfied or not, यस। सेटिस्फाइड। बताइए, हो सकता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो P0 can be satisfied, तो P0 क्या करेगा, अपने रिसोर्स को रिलीज कर देगा आफ्टर कंप्लीशन इट्स एग्जीक्यूशन, 0 0 1, दैट इज 4 5 यस। तो अगर से हमने पहले रिक्वेस्ट 2 को एक्सेप्ट किया, तो वी हैव सेफ सीक्वेंस, हमने सारे रिक्वेस्ट क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया ना, तो P1 P2 and then P1, so first request 2 can be entertained, then request 1, ठीक है, तो रिक्वेस्ट 2 को पहले करेंगे, क्लियर है, यस, यस सर। दिस इज द सिनेरियो। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, इसको आप फिर से स्टडी कीजिएगा, पीपीटी आपके पास है, मैं शेयर कर चुका हूँ, गो लाइन बाय लाइन, जो मैंने बोला है और जो लिखा हुआ है सब वहाँ पे मेंशन, तो इस तरीके से हमने ये चेक किया कि यस नाउ बैंकर्स एल्गोरिथम एक्चुअली एलोकेट एक्सेप्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, नॉट एज्यूमिंग, क्लियर बेटे, ये सब जो मैं लिख दिया, 642 आया, नाउ स्टेप 2, देन 853, देन 854, so thus last time क्या, there exists a safe sequence of P1 P2 P0 in which all the process can be, so the system is thus request 2 can be permitted, request 1 cannot be request 2 permitted, ठीक है, क्लियर है। तो अब आपके पास ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था कि 2 रिक्वेस्ट आए थे आपके पास, आपने देखा रिक्वेस्ट 1 कैनॉट बी परमिटेड, बिकॉज़ ऑफ सेफ सिस्टम। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, अ सिस्टम हैज 4 प्रोसेस, 5 एलोकेटेड रिसोर्स, द करंट एलोकेशन एंड द मैक्सिमम नीड्स आर गिवन, अवेलेबल कितना है, 0 0 x 1 1, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच दिस केस इज, तो ये गेट में क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह का, तो क्वेश्चन सेम है, वे ऑफ आस्किंग डिफरेंट। तो सिस्टम के पास 4 प्रोसेस है, 5 एलोकेटेबल रिसोर्स है, द करंट एलोकेशन एंड मैक्सिमम नीड्स गिवन है, अब अवेलेबल क्या है, 0 0 x, तो क्या था कि स्मॉलेस्ट वैल्यू x की क्या होगी जिससे सिस्टम सेफ स्टेट में आ जाए, ठीक है। तो देखिए अवेलेबल कितना है हमारे पास, हम करेंगे इसको हिडन टॉय मेथड, हमारे से पहले इसको 0 ले लेते हैं, कितनी लेते हैं, 0, है ना, द मिनिमम क्या 0 हो सकता है रिसोर्स वैल्यू, Yes, sir. क्योंकि होल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर 0, होल नंबर होगा 0, तो 0 मतलब क्या, देखिए 0 0 1 1, तो विद दिस 0 0 1 1 0 0 0 1 1, किसे कर सकते हैं, किसी को कर सकते हैं सेटिस्फाई, पहले नीड निकाल लीजिए, नीड क्या होगा बताइए, यस बताए बेटे, सर 01002। 0 1, अब बोलो भाई, जो बोलूंगा वो मैं लिख दूंगा, 0 1 0 0 2, जी। ओके, और बाकी लोग चुप चेक करते हैं, और श्वेता 02100 0 0 0, देन नेक्स्ट 10300 1 0 3 0 0, नेक्स्ट 00110 0 0 1 1, अब आप बाकी लोग चेक करिए करेक्ट नहीं करेक्ट, ठीक है, और लोग तो नाउ 0 0, यहाँ भी 0 है हमारा, 1 1 1, सपोज x वैल्यू इज 0, तो 0 0 1, सॉरी 0 1 1, बताइए अब इससे हम कौन सा रिक्वेस्ट सेटिस्फाई कर सकते हैं, बताएं, पॉसिबल है कोई, नो सर। नो, इट मींस 0 इज नॉट पॉसिबल, देन गो फॉर 1, अब बताइए
यस सर यस सर डी नाउ कौन किसको कर सर सकते हैं? डी ये क्या 0 0 1 1 2 बोला था आपने ना सर 0 है लास्ट में श्वेता? अच्छा 0 वाला, तो 0 0 1 1 यस डी कैन बी सेटिस्फाइड। तो जब डी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अब अवेलेबल कितना होगा हमारे पास? 1 0 0 1 1 कितना हो गया अवेलेबल? 1 1 1 1 ये तो अवेलेबल हुआ हमारे पास आफ्टर D1 फिनिश इट्स एग्जीक्यूशन, करेक्ट? ये तो है क्या यस बेटे? सर Yes, sir. नाउ अब दिस रिपोर्ट इसे किसे कर सकता है? अब कौन हो सकता है सेटिस्फाइड? ये तो हो चुका हमारा। अब बताइए 0 1 1 1 1 किसे कर सकते हैं? किसे कर सकते हैं? नहीं नहीं कर सकते ना। Sir. ए बी सी में से कोई हो सकता है? तो इसका मतलब 1 भी क्या है? फेल हो जाएगा। सिस्टम इज नॉट सेफ स्टेट, तो हम यहाँ से हटते हैं, फिर अगेन गो टू बैक। अब क्या करेंगे? यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी सर 2 बताइए? 1 भी काम नहीं किया तो 2 2 यस 2। तो ऐसे चेक करते जाइएगा, ये आपका होमवर्क, ठीक है? तो कितना हमने लिया हुआ है? लीड क्वेश्चन निकाला हमने यहाँ पर, कंप्लीट है इसको मुझे बताइएगा, आपका होमवर्क है ये, ठीक है? क्वेश्चन कंप्लीट है, ये आपका होमवर्क है, वैल्यू कितनी आएगी? ठीक है बेटे, मैंने एक करके दिखाया है केस 1, केस 2 क्या होगा? फॉर एक्स इक्वल टू 1 वो भी मैंने बता दिया अभी आपको। केस 1 इज आल्सो नॉट गोइंग टू वर्क। नाउ केस 2 क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू 2 करके चेक कीजिएगा, ठीक है? यस क्लियर है? सर ओके हो सर। गया ये मैं कल ट्राई कीजिए। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है करके देखिएगा, इससे फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोग बता भी देंगे क्या। सर कर लिया तो वो, कर लिया? कितने वैल्यू आ रही थी बताइए श्वेता? श्वेता आपने कर लिया है, इसको सॉल्व किया है? यस श्वेता मॉडेबल कितनी वैल्यू आई बताइए? एक्स वैल्यू कितनी आई थी? सर 2 ही तक जाएगा 2 तक जाएगा, ओके। तो 2 तक जाएगा, देखो आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। 2 तक जाएगा और क्या था सेफ सीक्वेंस, क्या था पहले? कौन सा होगा फिर? एबीसीडी में बताइए क्या है आपने? तो सर एक सेकेंड हाँ हाँ चेक कर लीजिए, देखो टाइम। बट इधर बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं और आपको बिल्कुल डेडलॉक का पूरा आइडिया है। गेट के क्वेश्चंस आ रहे हो, इंटरव्यू में कोई पूछ रहा हो, यू कैन, अगर से आपने इसको सॉल्व किया मैनुअली, जो शेड्यूलिंग पॉलिसी भी आपने अगर मैनुअली सॉल्व किया हुआ है, तो आप सबको रटने की जरूरत नहीं है। यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। आप कोडिंग कर लेंगे तो क्या और अच्छी अच्छी समझ हो जाएगी आप। बस कोडिंग के अंदर स्टेप बाय स्टेप आप सिमुलेट कर रहे हैं चीजों को, हर वेरिएबल की वैल्यू आपको पता हो जाती है कि वेरिएबल क्या करता है, इसको कैसे करता है, वो आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। मैं सर कोशिश ही करता हूँ कि DCAD जैसे आप लोग को सब चीज समझ में आए। BCAD, तो ऑल ऑफ यू जस्ट नोट दिस सीक्वेंस BCAD। तो ये कल होमवर्क है, मैं ये कल किसी से भी पूछ सकता हूँ, ओके क्लियर? Okay. BCAD ये करके आप लोग सर रखिए। DCAD BCAD ये नोट करना है, और इस वैल्यू 2 है, ये वेरीफाई कर लेंगे हम लोग कल, ठीक है? पहले ये चालू कौन कौन आता है। So this is all about deadlock. This is some references that I have used, तो आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं। तो अब हम करेंगे पढ़ेंगे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक इन डेडलॉक एंड इज द लास्ट टॉपिक, ठीक है, यूनिट 2। तो यस yes सर। बेटे, Yes, sir. रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, इट दिस ग्राफ इज यूज्ड टू डिटेक्ट द डेडलॉक। डेडलॉक डिटेक्शन में इसका काम होता है। डेडलॉक हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो इसको आप यूज कर सकते हैं डिटेक्शन। So it gives complete information about a state of a system, such as how many process exist in the system, Yes, sir.
हाउ मेनी इंस्टेंसेस ऑफ अ रिसोर्स टाइप एग्जिस्ट, यानी एक रिसोर्स की कितनी कॉपी अवेलेबल है। हाउ मेनी इंस्टेंसेस ऑफ ईच रिसोर्स टाइप एलोकेटेड, तो कौन कौन सी कॉपी रिसोर्स की एलोकेट हो चुकी है, कितनी अवेलेबल है, और हाउ मेनी इंस्टेंसेस ऑफ ईच रिसोर्स टाइप आर हेल्ड बाय, कितने प्रोसेस में कितना कितना रिसोर्स दिया होगा। ये सारी चीजें बताता है ग्राफ। कैसे बताएगा हम चेक करेंगे। एंड हाउ मेनी इंस्टेंसेस ऑफ ईच रिसोर्स टाइप डज ईच प्रोसेस नीड फॉर एग्जीक्यूशन, तो उसे कितना और चाहिए होगा एग्जीक्यूशन के लिए। तो इंस्टेंस मतलब क्या, कॉपी। इस प्रिंटर की 2 कॉपी है, स्कैनर की 4 कॉपी है, Yes. यू कैन से इंस्टेंसेस ऑफ स्कैनर इज 4, इंस्टेंसेस ऑफ प्रिंटर। तो कंपोनेंट क्या होता है इसका, तो वर्टिसेस होते हैं, ग्राफ है, ग्राफ में वर्टिस हो गया, एज होंगे। वर्टिसेस क्या होती है, जैसे 2 टाइप्स ऑफ वर्टिसेस, प्रोसेस एंड रिसोर्स। तो वर्टिसेस आर यूज्ड टू डिनोट 2 काइंड ऑफ थिंग्स, प्रोसेस एंड रिसोर्स। प्रोसेस में क्या होगा, प्रोसेस वर्टिसेस रिप्रेजेंट द प्रोसेस, दे आर ड्रॉन एज ए सर्किल। तो सर्किल से क्या डिनोट करेंगे, प्रोसेस डिनोट करेंगे, ठीक है। दैट मेंशनिंग द नेम ऑफ द प्रोसेस इनसाइड द सर्किल। रिसोर्स वर्टिस क्या होगा, resource vertices represent the resource depending upon the number of instances that exist in the system. Resource vertices may be single instance or multiple instance. They are drawn by rectangle. तो ये कहने का मतलब है रेक्टेंगल से हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, रिसोर्स, और उसके अंदर जो डॉट होगा वो क्या शो करेगा, उसकी कॉपी। तो लेट मी यूज एनोटेशन। अच्छा मैं भी आगे बताऊंगा, मैंने आगे यूज किया। The number of dots inside the rectangle indicates the number of instances of that resource existing. अगर प्रिंटर है, उसकी 2 कॉपी है तो 2 डॉट होता है रेक्टेंगल के अंदर। स्कैनर है उसके अंदर 5 कॉपीज है उसकी, तो 5 डॉट होता है। एज, 2 टाइप्स ऑफ एज है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ सच एज असाइन एज एंड रिक्वेस्ट एज। तो कौन कौन सा रिक्वेस्ट असाइन हो चुका है और कौन कौन से रिक्वेस्ट एज रिक्वेस्ट रिसोर्स को रिक्वेस्ट की जा रही है। तो असाइन एज क्या होती है, इट रिप्रेजेंट द असाइनमेंट ऑफ रिसोर्स टू द प्रोसेस। They are drawn as an arrow where the head of the arrow points to the process and tail of the arrow points to the instance of the resource. Request edge क्या होगी, it represents the waiting state of the process. They are drawn as an arrow where the head of the arrow points to the resource and tail points to the process. If a process having require n instances of a resource type n, then n assign edge will be drawn. ये इसका फिगर, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या देखिए, दिस इज प्रोसेस एंड P1 क्या इसके अंदर हमने लिख दिया। तो सर्किल इज यूज फॉर द प्रोसेस P1 इसके अंदर, रिसोर्स इज यूज फॉर रेक्टेंगल। तो R1 इज रिसोर्स, और रिसोर्स R1 की कितनी कॉपी है बताइए, 1 कॉपी, तो 1 डॉट इज देयर। R2 की कितनी कॉपी है, 2 कॉपी है, तो 2 डॉट्स। दिस इज असाइन एज, दिस इज रिक्वेस्ट। तो असाइन एज में हेड कहाँ पर है, प्रोसेस की तरफ है, टेल कहाँ है, रिसोर्स की तरफ। तो इंस्टेंस असाइन हुआ है। और रिक्वेस्ट में क्या है, हेड रिसोर्स के इंस्टेंस की तरफ है और टेल कहाँ पर है, P1 की तरफ। क्लियर है। तो यहाँ पे R1 इज असाइन टू P1, P1 इज रिक्वेस्टेड फॉर रिसोर्स R2। सिमिलरली one instance of R2 is assigned to P2 and second instance of R2 is assigned to P3, okay, and P2 is requesting or waiting for resource R1। clear है, yes बेटे, Yes, sir. Yes, sir. is clear। so this is the explanation of this resource allocation graph. It has process vertices and edges, 2 vertices, process vertices for circle, and we give the name inside circle of the process. Resource vertices rectangle, and number of instances is shown by dot। assign edge, हेड कहाँ पे होगा, प्रोसेस की तरफ, टेल कहाँ होगा, रिसोर्स के इंस्टेंस की तरफ। रिक्वेस्ट एज, हेड होगा रिसोर्स इंस्टेंस एंड टेल होगा प्रोसेस। ओके, क्लियर। ये हमारा